ये जैसे मैं जब स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट को तो मैं इसी तरह से करता हूँ। ठीक, ओके ओके। ओके, सो टू स्टार्ट विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एनसिस सॉफ्टवेयर की बात करें तो एनसिस सॉफ्टवेयर रिलेटेड है टू सीएई। नाउ व्हाट इज सीएई? सीएई मींस कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग जो भी हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, वेदर इट इज अ पार्ट और अ असेंबली, उसका एनालिसिस करने के लिए यूज होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, here we can see in the image there is a simple model of a car body. Now यहाँ पर इस कार के मॉडल पर हम ये डिफरेंट कलर पैटर्न्स देख रहे हैं। Now basically these color patterns are depictions of a particular result. Like for example, let's say ये कार on the road है एंड सडनली इसको यहाँ लेफ्ट साइड से कोई ऑब्स्टिकल आकर हिट करता है। सो देयर द स्ट्रेस विल बी मोर इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सो अगर ये रिजल्ट्स हम स्ट्रेसेस के टर्म्स में देखते हैं, सो हियर दिस पर्टिकुलर रेड जोन विल इंडिकेट द रीजन जहां पर की कार को सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है। And the next reasons what we are seeing here, these are showing the reduction in the stress, जिसमें ये जो blue color है that shows the stress value where it is almost negligible. So in short, in a CAE software we can have a performance check of any particular part when it comes under a load. So how it will behave under that particular load, where it may fail. Then in CAE, basically, we analyze a design for these main reasons, like for production of better results, then to develop a safe design. For example, when an automotive industry develops the design of a car, then it performs a number of virtual tests in ANSYS software to predict its behavior, especially for the human safety. So this helps the industry to develop a more safer design. Then mass reduction. For example, let's say I want to develop a part where I need its mass should be less. So in ANSYS, just like the CAD softwares, we can assign materials, have a comparison study between the materials, and जब हम multiple materials में comparison करते हैं, so there we can also check out what is the particular weight, what is the particular volume of a component for that particular material. Now, in short, what the product we get as a result of CA analysis is a cost-effective and long-lasting product. Then in ANSYS, there is also a dedicated module called as optimization. Now, what is optimization? Optimization means developing the best design for your working conditions. Like for example, let's say मुझे एक पार्ट के शेप को एडिट करना है. For example, I want to modify its area so that the stress concentration may get reduced, as stress is equal to force upon area. So here I can make changes to my model by using the optimization analysis, and there I will get the best set of dimensions जिसमें कि मुझे stress concentration in terms of area कम से कम मिलेगा. So these suggestions are also given by the software when we perform a optimization analysis. Now, for solving any analysis in ANSYS, we have to go through 3 stages. The first one is pre-processing. Now, pre-processing means जो एनालिसिस हम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इनपुट्स को डिफाइन करना. लाइक फॉर एग्जांपल, thank you sir. Like for example, let's say we want to create the model जिसका हमको एनालिसिस करना है.
या फिर हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है तो उसे हम एनसिस में इंपोर्ट करते हैं. हाउएवर एनसिस इज नॉट मेंट फॉर मॉडलिंग. एनसिस सिंपल शेप्स को तो डेवलप कर सकता है, लेकिन अगर हमें किसी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट का डेवलपमेंट करना है देन वी हैव टू गो फॉर द importing of the model. So it's always recommended that the the trainee should be aware of a CAD software so that he or she can develop the models in CAD first. Then, if required, we can import the model into the ANSYS. Next is boundary condition. Now, boundary condition basically define करता है clamping conditions. Like एक simple example लेते हैं. लेट्स से मुझे कैंटिलीवर बीम का एनालिसिस करना है. नाउ हमें मालूम है कैंटिलीवर बीम हमेशा वन साइड क्लैम्प्ड होती है या माउंटेड होती है. सो दिस कंडीशन विल बी डेजिग्नेटेड एज अ बाउंड्री कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एनसिस. नाउ फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ बाउंड्री कंडीशन. लेट्स से अगर मैंने इसके इस फेस को डिफाइन किया है कि ये फिक्स्ड है, so here it's all 6 degrees of freedom will be considered zero. Likewise, in mechanical engineering problems, when we solve any particular type of analysis, so there we have to define different kinds of boundary conditions like hinge support, fixed support, pin. Then sometimes for cylindrical jobs we define cylindrical supports, जिसमें हम respectively tangential and radial degrees of freedom को भी restrict कर सकते हैं. Especially अगर हम किसी ऐसे part का analysis कर रहे हैं which is a part of a assembly, so there we have to define the boundary condition in terms of how that part is being assembled with respect to the nearby parts. Then we go for application of loads. So loads can be in the form of point load, UDL, moment, and then depending upon these inputs, we finally go for the meshing. Now ANSYS में जो आपका solution आता है वो completely depend करता है how we mesh, and meshing is a very important part in controlling the accuracy of the solution. In meshing, we discretize our part into nodes and elements. So these points are called as nodes, and इनके जो connectors रहते हैं they are the elements. Now जो भी results generate होता है वो nodes पे generate होता है. Nodes are the result generation points. Now the thumb rule is कि अगर हम अपने मॉडल में ज्यादा से ज्यादा nodes define करते हैं तो वहां पर हमारा सॉल्यूशन मोर नियरर टू एक्यूरेसी आता है, क्योंकि एनसिस काम करता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड के एल्गोरिथम पर, और एफईएम का सिंपल रूल है जितना ज्यादा आपका डिस्क्रेटाइजेशन होगा उतना ज्यादा आपका सॉल्यूशन नियरर टू एक्यूरेसी मिलता है. फॉर एग्जांपल एफईएम में कभी भी 2 into 2 4 रेयरली मिलता है. 2 into 2 3.7 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है. लेकिन अगर 1 आता है तो वो गलत है. और वो क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि हमारे मॉडल में नंबर ऑफ नोड्स और एलिमेंट्स बहुत कम है. अगर वो कम है तो हमको उनको इंक्रीज करना है सो दैट हमारा आंसर 3.7 तक पहुंच सके. सो देयर वी हैव टू लर्न. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल इन ANSYS जिससे कि हम meshings create कर सकते हैं. Finally, we go for the solving part. So this solving takes place in the background that we cannot see. जो भी हमने conditions दिए हैं उसके accordingly software से solve करता है. And then we go for the post processing. So post processing is basically the study of the results, जिसमें हम results के values के साथ साथ उनका comparison करते हैं wherever possible from the theoretical results. So this result is basically displayed in the form of a legend. So this is the standard format of a legend, and here ये जो redmost जो band है that indicates the highest value,
and these indicates the values with lower ranges. Now, depending upon these fundamentals, let us take a small example to understand this process. So I will now change the screen to screen of ANSYS Workbench. So this is ANSYS Workbench. Now ANSYS has two modules. This is the Workbench. There is one more environment that is called as APDL. So its full form is ANSYS Parametric Design Language. So it is the classic module. In APDL, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जस्ट लाइक अ प्रोग्राम, जस्ट लाइक अ सी प्रोग्राम, हम किसी भी रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं, कोड्स लिखते हैं और फिर हमें रिजल्ट मिलता है। एपीडीएल में हमको कुछ इसी तरह से काम करना पड़ता है, लेकिन वर्कबेंच एज कंपेयर टू एपीडीएल टूल बेस्ड ज्यादा है। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं या आप फ्रेशर हैं तो वर्कबेंच हमेशा आपको एक इजी स्टार्टअप देता है, एंड देन लेटर ऑन व्हाइल यू स्टार्ट वर्किंग इन द एनालिसिस फील्ड आप पैरेलली एपीडीएल भी लर्न कर सकते हैं। So I used to teach both APDL and Workbench. Now here we will take a simple example in APDL. So this example will show a simple analysis of a piston which is under the load of the gases which are produced during the combustion cycle of an engine. Now here this is our project schematic window. So this is our working space. इसमें आप एक या एक से ज्यादा कई सारे एनालिसिस बना सकते हैं, बट जब आप इसको सेव करेंगे, सो व्हाइल गोइंग टू फाइल एंड देन सेव, सो दिस विल बी सेव्ड एज अ सिंगल फाइल. नाउ दिस इज योर टूल बॉक्स एंड यहाँ से आपको जो भी एनालिसिस रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कॉल कर सकते हैं. दिस इज माई स्टेटस बार एंड दिस इज माई मेनू बार. Now, in our example, जो load act हो रहा है वो load constant है, means it will have a constant magnitude. It is not going to vary with respect to time. तो इसके लिए अब हमको यहाँ पे insert करना पड़ेगा static structural analysis. अब यहाँ हम देख सकते हैं static structural analysis 3 दिए गए हैं. तो मैंने यही क्यों सेलेक्ट किया? इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये जो स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ये एनसिस का जो इनबिल्ट एपीडीएल सॉल्वर है उससे रन होगा. ये जो बाकी के हम देख रहे हैं अबेकस एंड सिमसफ, इसके लिए आपको ये सॉल्वर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं. तो अगर ये इंस्टॉल है तभी ये वर्क करेंगे, अदरवाइज नॉट. सो हियर आई विल गिव नेम टू दिस एनालिसिस. अगर हम एक से ज्यादा एनालिसिस इस प्रोजेक्ट स्कीमेटिक विंडो में बना रहे हैं तो हमेशा इसी रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पर इसको एक नेमिंग कर देना अच्छा रहता है. नाउ इसके बाद हमको असाइन करना है मटेरियल. सो इसके लिए हमें यहाँ पे दिया गया है इंजीनियरिंग डेटा. सो दीज आर कॉल्ड एज द सेल्स. सो आई विल डबल क्लिक ऑन इंजीनियरिंग डेटा सेल. दिस विल ओपन the options to create or edit the material. Now here we have to take a note कि यहाँ पे default material structural steel रहता है. अगर आप कोई भी material select नहीं करते हैं, जो भी आप part का analysis करेंगे उसके लिए structural steel ही assign होगा. लेकिन यहाँ पर मुझे structural steel नहीं, यहाँ पर चूंकि मेरा part piston है, piston बनता है aluminium alloy से, तो यहाँ पर aluminium alloy हम directly स्टैंडर्ड मटेरियल लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग डेटा सोर्सेस उससे असेस कर सकते हैं. सो आई विल डबल क्लिक हियर एंड दिस विल लोड द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. सो हियर वी विल गो टू जनरल मटेरियल्स. नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कई सारे मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं. सो मुझे जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एलॉय चाहिए,
सो यहाँ पर मैं ये प्लस पे क्लिक करूंगा and here I will get a symbol of a bookmark. So that shows कि मेरा ये मटेरियल ऐड हो गया है. I will close it. यहाँ पर we have to take a note कि जो भी हम मटेरियल देते हैं उसके ये प्रॉपर्टीज यानी यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जैसे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 7.1 E. E का मतलब होता है 10 into 10 to the power 10. ये पास्कल्स में है. अगर आपको यूनिट्स चेंज करना है तो यहाँ से हम एमपीए में भी ले सकते हैं. एंड इफ अगर ये वैल्यू हमें नहीं यूज करना है, हमारे डिजाइन डेटा बुक में कोई और वैल्यू है, तो ये वैल्यू आप एडिट भी कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर हमारा मटेरियल असाइनमेंट का काम हो गया. आई विल ऑफ इट. नाउ नेक्स्ट मुझे चाहिए पार्ट. अब यहाँ पर पिस्टन मैं बनाऊंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल सॉलिडवर्क्स में बनाया है. मैं डायरेक्टली उसको इंपोर्ट करूंगा. इसके लिए यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा इन द ज्योमेट्री सेल and here I will select the option of import geometry. So this is the file piston.igs. Here we have to take a note कि अगर हम CATIA या SolidWorks या Creo से कोई भी पार्ट ANSYS में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उस फाइल को IGS, STP, पैरासॉलिड या हमें अलग अलग कन्वर्शंस में सेव करना पड़ता है. So then and then it gets opened here. Now यहाँ पर ज्योमेट्री सेल पर मुझे टिक का ऑप्शन आया, मींस दिस पार्ट इज सक्सेसफुली इंपोर्टेड. अगर यहाँ कोई एरर रहता है तो मुझे यहाँ पर क्रॉस दिखता है. नाउ बेस्ड अपॉन दिस आई विल फाइनली गो फॉर मेशिंग. इसके लिए मैं ये मॉडल सेल को डबल क्लिक करूंगा. ये ऑप्शन बेसिकली मैकेनिकल मॉड्यूल को ओपन करता है एंड मैकेनिकल मॉड्यूल में आप आपके पार्ट की मेशिंग, बाउंड्री कंडीशंस, लोडिंग, देन आपके रिजल्ट्स का स्टडी ये सब कर सकते हैं. सो दिस विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टेजेस इन आवर एनालिसिस. सो इट टेक्स few minutes to open the mechanical module. It is getting loaded. So I will change the screen share. So this is our mechanical window. After opening, it takes few minutes to attach the geometry. So this is our geometry, the piston. Now here, first of all, before starting the analysis, हम unit set करेंगे. It is always a better practice to follow a uniform unit. So मैं यहाँ पे mm लेता हूँ. अगर मुझे change करना है तो मैं यहाँ से change भी कर सकता हूँ. Now अब मुझे इस पिस्टन का मटेरियल सेट करना है क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील है. तो इसके लिए मैं ये पार्ट को सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पर असाइनमेंट्स में स्ट्रक्चरल स्टील की जगह आई विल असाइन इट एज अ एल्यूमिनियम एलॉय. सो इट विल नाउ गेट असाइन्ड. नाउ आई विल गो फॉर द मेशिंग. नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है दैट इज नॉट अ रेगुलर पार्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिस्टन के रिंग्स हैं, ये हियर इस पार्ट की थिकनेस क्वाइट कम है. देन यहाँ पर हम देख सकते हैं देयर आर कर्वेचर्स लाइक फिलेट्स आर देयर. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बिगिनर हूँ, मुझे कैसे समझेगा कि जो मैं मेश बना रहा हूँ वो बिल्कुल सही है? क्योंकि अगर मेरा मेश ही प्रॉपर नहीं है तो मेरे सॉल्यूशंस में एरर आने के चांसेस ज्यादा होंगे. ऐसे कंडीशंस में सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है. तो इन सच केसेस वी हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द सेटिंग्स. जैसे कि मेश में जाने के बाद सबसे पहले तो आप इसका जो डिफॉल्ट ऑप्शन है इसको बोला जाता है एडवांस्ड साइज फंक्शन. ये आपको कई सारे ऑप्शंस देता है जिससे कि आप मेश को बेस्ट क्वालिटी का बना सकें. इसको हम ऑफ ना रखते हुए यहाँ पर आएंगे
नाउ यहाँ कई सारे एल्गोरिथम्स हैं। इस एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है ऑन प्रॉक्सिमिटी एंड कर्वेचर। इसका मतलब ये होता है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है आपके पार्ट में जो ऐसे रीजन्स हैं जिनकी थिकनेस बहुत कम है। अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर जहां पे कम थिकनेस वाले रीजन्स हैं उस पर बहुत कम एलिमेंट्स जनरेट करेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि एलिमेंट्स अगर कम है तो हमारे सॉल्यूशन की एक्यूरेसी उसमें कॉम्प्रोमाइज होती है, हमको वो नहीं करना है। कर्वेचर, जैसे यहाँ पर मैंने देखा बताया कई सारे फिलेट्स हैं, स्टीप्स हैं, तो मुझे यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐसे रीजन्स में एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। So for this example only, I will select on proximity and curvature. इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि मेरे एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा बने। ज्यादा से ज्यादा बने इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिलेवेंस सेंटर। ये कोर्स है, कोर्स मतलब ओवरऑल सॉफ्टवेयर कम ही एलिमेंट्स जनरेट करेगा। फिर मीडियम है, सबसे बेस्ट फाइन होता है। चलिए हम मीडियम लेते हैं एंड मीडियम में बेसिकली देयर विल बी अ एवरेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं। एंड अगर आपका पार्ट बड़ा है और सपोज करिए आपने मीडियम या फाइन मेश दिया है, सो ये मेश जनरेट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके लिए ये जो रिलेवेंस रहता है इसकी वैल्यू आप सेट कर दीजिए -100। की वैल्यू होती है -100 टू +100। -100 का मतलब होता है कि इसमें आपका जो मेश है वो अच्छे क्वालिटी का बनेगा और फास्ट स्पीड से बनेगा। नाउ ये होने के बाद अब मैं इस मेश को जनरेट करता हूं एंड नाउ लेट अस चेक द मेश। सो नाउ द सॉफ्टवेयर विल स्टार्ट जनरेटिंग द मेश। मेश स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हमको इसमें बाउंड्री कंडीशंस देना होगा एंड देन वी हैव टू अप्लाई द लोड्स। So now the software is get, so now we can see here कि यहाँ पर स्पेशली हम देख सकते हैं जो ये थिनर रीजन्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्वाइट अच्छे बने हैं। इवन जो ये कर्वेचर्स हैं यहाँ पे वी कैन सी द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इज क्वाइट गुड। नाउ बेस्ड अपॉन दिस यहाँ पर अब हम परफॉर्म करेंगे बाउंड्री कंडीशन। सो रिगार्डिंग बाउंड्री कंडीशन, अब ये पिस्टन कैसा है, पिस्टन एक स्लाइडिंग मेंबर है। इंजन की केसिंग में स्लाइड होता है, तो जब स्लाइड होता है सो हमको ये ध्यान रखना है कि स्लाइड होते समय फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा YZ प्लेन है जिसमें ये स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड होते समय ये इस प्लेन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऑफसेट नहीं होना चाहिए। ये चीज हमको सॉफ्टवेयर को समझाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमको कंडीशन देनी पड़ती है, इसका यहाँ पे नाम है फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। फ्रिक्शनलेस सपोर्ट का मतलब होता है कि जिस रीजन को हम फ्रिक्शनलेस सपोर्ट डेजिग्नेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये फेसेस को सिलेक्शन कर रहा हूँ पोल्स के बाय यूजिंग कंट्रोल सिलेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली पिस्टन क्लैंप यहीं से होता है। आई विल अप्लाई फ्रिक्शनलेस सपोर्ट का मतलब होता है कि इसमें जो भी आपका पार्ट अंडर स्टडी है that will either translate or rotate in a single plane without being getting deflected from it. So ये कंडीशन फ्रिक्शनलेस सपोर्ट से डिफाइन होती है। फाइनली मुझे यहाँ पर लगाना है प्रेशर। सो यहाँ पर जो गैसेस का लोड है उसको मैंने प्रेशर के फॉर्म में कंसीडर किया है। आई विल टेक इट एज अ प्रेशर एंड आई विल सेलेक्ट द हेड पोर्शन। नाउ ये पोर्शन ये प्रेशर ऑलवेज बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टू फेस लगता है। सो लेट्स से मुझे यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है 25 MPa की। ये मेरा प्रोसेसिंग फिनिश हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं रिजल्ट्स इंसर्ट करूंगा। लाइक सपोज मुझे देखना है कि ये पिस्टन डिफ्लेक्ट कैसे होता है एंड नेक्स्ट फिर मैं यहाँ पे देखूंगा स्ट्रेस। सो what is the resultant or equivalent stress coming in this piston? Now let us solve it. Now ये solving background में होगा, इसको हम देख नहीं सकते, but टेक अ नोट कि ये जो सॉल्विंग होता है इसमें जो इक्वेशंस सॉफ्टवेयर सॉल्व करता है वो इक्वेशंस
मैट्रिसेस के फॉर्म में रहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिफनेस मैट्रिक्स, जिसको सॉफ्टवेयर सॉल्व करता है. So now the solving has started, and after the solution is done, यहाँ जो रिजल्ट्स रहते हैं उस पर टिक मार्क आ जाता है. So now the solving is getting done. So now we have got the results. Now let us check the results. So this is the total deflection. So these ends of the piston are getting deflected too much. So its highest value is 39.174 mm. Then let's check for the stress. So where is the stress? So stress is coming in these regions. कभी भी हमें याद रखना है कि जहां पर क्लैम्प्स होते हैं वहीं पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आता है फोर्स को, एंड देयर वहां पे स्ट्रेस के जनरेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं. अगर हमको एक पिन पॉइंट लोकेशन देखना है कि स्ट्रेस कहाँ है, आई कैन क्लिक ऑन मैक्स. सो हियर इट विल शो इन दिस पर्टिकुलर रीजन द स्ट्रेस इज maximum and its highest value is 392.57 MPa. Now ये जो रिजल्ट है, सपोज अगर मुझे इसको एनिमेटेड फॉर्म में देखना है, सो आई कैन गो हियर ऑन ग्राफ ऑप्शन, एंड देन मैं यहाँ पर इसको एनिमेशन को प्ले कर सकता हूँ. सो इट विल शो द डिफ्लेक्शन ऑफ द पिस्टन. सो पिस्टन यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों साइड्स में टिल्ट हो रहा है, but it is not getting deflected from its center. Now ये एनिमेशंस को if required तो हम सेव भी कर सकते हैं by using the option of export video file. Now अगर ये रिजल्ट्स हमको फॉर एग्जांपल इसका स्नैपशॉट हमारे प्रोजेक्ट की थीसिस में लगाना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, एंड प्रिंट प्रीव्यू में सॉफ्टवेयर विल क्रिएट अ स्नैपशॉट इटसेल्फ. ये स्नैपशॉट को हम डायरेक्टली यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव पिक्चर एज ले सकते हैं, एंड यहाँ पर दिस विल बी सेव इन अ पीएनजी और बिटमैप फॉर्म, जिसमें भी हमें सेव करना है हम कर सकते हैं. अनदर गुड थिंग विद एनसिस वर्कबेंच इज दैट सपोज मुझे ये जो पूरा एनालिसिस है इसका एक रिपोर्ट बनाना है. सपोज मैं जाता हूँ रिपोर्ट प्रीव्यू में. नाउ इन रिपोर्ट प्रीव्यू बेसिकली सॉफ्टवेयर जो जो आपने वर्क किया है उसका एक शॉर्ट समरी प्रिपेयर करता है. जैसे इसमें इंफॉर्मेशन रहता है रिलेटेड टू योर यूनिट्स, देन ज्योमेट्री के डायमेंशंस, देन मेश के इंफॉर्मेशंस, देन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर सॉल्यूशंस. ये सारे रिपोर्ट्स को अगर आपको डायरेक्टली कहीं कॉपी करना है, आप इसको डायरेक्टली सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड की फाइल प्रिपेयर हो जाती है, एंड उस फाइल को देन यू कैन यूज फॉर योर एडिटिंग पर्पस. नाउ यहाँ एनसिस में अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी भी पार्ट के लिए जो रिजल्ट्स का डिस्प्ले है, फॉर एग्जांपल ये तो मुझे एक ओवरऑल रिजल्ट दिख रहा है, मुझे ये चेक करना है कि जो इसके इंटीरियर फीचर्स हैं उसमें ये रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कैसा डिस्प्ले आया है, स्पेशली फॉर complicated parts or assemblies. So in ANSYS we can also create the sections, और sections में हम यहाँ पे directly देख सकते हैं the results. So here we have option of section plane. यहाँ पर मैं simple left mouse button को press रखते हुए कैसा मैं vertical line draw करूँगा, it will create the section like this. So this is the section. So here I am easily able to visualize how the pattern of the result is there in the internal sections. इसको मुझे ऑफ करना है तो मैं ऑफ कर सकता हूँ. सेम अगर मुझे कोई दूसरा सेक्शन बनाना है, can take like this, I go here and यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ. So in this manner we can perform a
simple analysis of a piston using various options in ANSYS workbench. So सर ये है एक small introduction है ANSYS का.